یہ سب بھی ہوگا بلیٹن کا حصہ، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ طالبان کی افغانستان میں پیش قدمی میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ ترکمانستان اور ایران سے باللقاء مزید 3 سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کی 85% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بھارت نے قندھار میں اپنا کانسلیٹ خالی کر دیا۔ روس سے تسلیم کیا گیا ہے کہ طالبان وقت گزرنے کے ساتھ معتدل ہو چکے ہیں اور وہ قابل سیاسی قوت ہیں۔ اور پاکستان نے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج افغان امن عمل کے حوالے سے تاجکستان روانہ ہوں گے۔ ملتان میں پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ وہ تاجکستان کے بعد ازبکستان جائیں گے، جہاں وزیر اعظم بھی آئیں گے۔ افغانستان کی فیصلہ ساز قوتوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان کے حالات بگڑے تو پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران بھی متاثر ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ سے گفتگو میں صورتحال پر ان کے تحفظات سمیت مجموعی پیش رفت پر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ 2 ہفتے میں طالبان کی جانب سے ملک پر قبضے کی بات مفروضہ ہے۔ افغان وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے۔ افغانستان کے شمالی اتحاد کو بھی دعوت دی ہے۔ اور افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو تمام تر صورتحال افغانستان میں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا کیا مستقبل ہے، اس کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، فی الحال تو افغانستان کے اندر ایک کنفرنٹیشن کی فضا ہے، جس میں 2 طالبان جو ہیں وہ ان علاقوں کو جہاں پہ لڑائی ہوتی رہی ہے یا جہاں امریکن فورسز جو ہیں وہاں پہ رہ کے اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتی رہی ہے، اور جب وہاں سے نکل کے چلے گئی ہیں، فزیکل ٹرپ جو ہے بگرام سے چلے گئے ہیں، باقی جگہوں سے چلے گئے ہیں، تو وہاں پہ طالبان پھر اپنے آپ کو ری اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ یہ ہے کہ طالبان نے بہت ساری ڈسٹرکٹس کا قبضہ کر دیا۔ تو اس قبضے کے اندر ان کی کلیش جو ہے وہ افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں سے ایسی بھی رپورٹس آ رہی ہے کہ افغانستان سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ بذات خود اپنے ہتھیار وغیرہ جو ہے وہ طالبان کے حوالے کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ جوائن کر رہی ہیں۔ اب اگر وہ طالبان کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے طالبان کی جو فزیکل اسٹرینتھ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے افغانستان سیکیورٹی فورسز نہیں بلکہ بہت سارے وار لارڈ بھی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی احمد شاہ کو سنایا جس نے کہا کہ جی میں افغانستان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑوں گا اور طالبان کو کابل پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس طرح کر کے جو مختلف علاقوں میں جس طرح افغانستان ڈی اسٹیبلائز کیا امریکن نے، اس کے حساب سے یہاں پہ ابھی بہت عرصے تک ایک پاور اسٹرگل۔ تو بریگیڈیئر صاحب، اس ساری صورتحال میں پاکستان کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان آگے کس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان نے تو بہت پازیٹیو کردار ادا کیا ہے نا۔ مستقبل میں جتنی پیس ڈیل ہوئی تھی جس کے نتیجے میں امریکن فورسز نکلی ہیں وہ پاکستان نے امریکن نکلے، پاکستان نے بروکر کیا تھا انیشلی، لیکن امریکہ نے آخر میں پاکستان کو بھی ٹچ کیا اور افغانستان کو ٹچ کیا۔ پاکستان کو زیادہ دھوکہ دیا جب انہوں نے بغیر کنسلٹ کیے پاکستان سے ایک وڈرال کی ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ اب جب وڈرال کی ڈیٹ اناؤنس کر دی تو پھر طالبان نے ابھی کس سے بات چیت کرنی، ابھی تو انہوں نے کہنا کہ ہماری اسٹرینتھ کی وجہ سے ہماری کامیابی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن جو ہے وہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی شکست کھا کے افغانستان کے اندر سے جا رہے۔ طالبان نے انہیں ناک رگڑنے پہ زمین کو مجبور کر دیا۔ جیمز اسکاٹ میلر جو وہاں پہ کمانڈر ہے وہ آج کہتا ہے کہ بڑی تیزی سے افغانستان کے اوپر قابض ہوتے جا رہے۔ تو پاکستان نے کردار ادا کیا۔ ابھی جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر جو کچھ چیز ہے وہ افغانستان کے بارڈرز کے اندر ہو رہی ہے اور پاکستان نے اس کے اوپر بیس کر کے کہہ دیا کہ ہمیں یہ فرض نہیں ہے کہ افغانستان میں کون سی حکومت آتی ہے۔ افغانستان میں جو حکومت آنی چاہیے وہ افغانستان کے لوگوں کی مرضی سے آنی چاہیے، چاہے وہ طالبان کی آئے، چاہے ناردرن الائنس کی آئے، چاہے جس کی مرضی آئے، اور پاکستان اس میں انٹرفیئر ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو افغانستان کے اندر ہوں گی، اس کے اندر پاکستان کا رول جو ہے ڈائریکٹ وہ تقریباً کسی بھی کوئی ڈائریکٹ افغانستان کی سرزمین کے اندر نہ کوئی رول ادا کرنا چاہیے۔ لیٹ دیم فائٹ امنگ دیم سیلف۔ جب وہاں پہ کوئی حکومت بنتی ہے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کس طرح کر کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا کس طرح چیزیں ہوتی ہے۔ ابھی 1 سال تک تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے تقریباً
कम से कम 1 साल तक तो यही लड़ाई, यही डिस्टेबलाइजेशन, यही चीजें जारी रहेगी। क्योंकि तालिबान अगर पावर में आ भी जाते हैं तो किस तरह उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, किस तरह उनकी रिकग्निशन होगी, क्योंकि वो किसी इलेक्शन के जरिए या किसी उस चीज के जरिए तो नहीं आए तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी। तो ये चीजें हैं जो अभी चलेंगी। और जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान में इफेक्ट आने तो इफेक्ट आएंगे पाकिस्तान में। तो लड़ाई तो अभी अफगानिस्तान के अंदर होगी, अब उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान। लेकिन सर इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान पर इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन कल DGISPR की जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देगा। वज़ीर आज़म भी इस बात को वाज़ेह कर चुके हैं, तो इस बारे में क्या कॉमेंट करेंगे आप? साबित करिए तो स्टांस आ गया है ना। जब तालिबान पीस डील जो हुई है, जब उसका एक क्लॉज तालिबान के लिए ये थी कि वो अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए, किसी प्रोस्टाइल ग्रुप को, तो ये रिस्ट्रिक्शन आई हो जाती कि वो अपनी सरजमीन किसी ऐसी ताकत को न दे कि यहाँ से जहाज उड़ा के जाके बमबारी करे वहाँ पे और उसका इल्जाम जो है वो ले लें। वो ताकत लेने के बजाय पाकिस्तान ले, और अमेरिका ने डर्टी गेम खेलना चाहते थे, एक गंदी गेम खेलना चाहते थे। जैसे उनकी आदत है रियाकारी की, झूठ बोलने की, धोखाधड़ी की और दूसरे लोगों को फंसाने की, दहशतगर्दी फैलाने की। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का काम ही कोई नहीं होता सिवाय दहशतगर्दी फैलाने के। दे आर द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड एवर। पॉलिटिशियन सारी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होती है। वो एक इनका प्रेसिडेंट मर गया, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मर गया पिछले दिनों। वो सबसे बड़ा दहशतगर्द था जिसने इराक को तबाह करवाया। इराक डोनाल्ड रम्सफील्ड जो था, इस किस्म के गंदे लोग वहाँ पे वो अमेरिका के अंदर बैठे हुए दहशतगर्दी में थे। ये भी जो बाइडन का भी ये तो यह है कि जी इस इलाके में दहशतगर्दी रहे, क्योंकि सारे के सारे यहूदियों के आलाकार हैं और बुनियादी तार दिल में मुसलमानों के खिलाफ कैरी फीलिंग, तो मुसलमान मुल्कों को जो है ये नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो एक तो वहाँ के अंदर वहाँ पे जो भी जंग खाना जंगी चलेगी उसका इफेक्ट आएगा। फिर जब अगर अमेरिका किसी और जगह से बमबारी करते हैं उसका इफेक्ट आएगा। और फिर वहाँ से अगर रेफ्यूजीज निकलते हैं, क्योंकि तालिबान अगर ज्यादा आएंगे तो बहुत सारी जगहों पर ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि जी हमें उन्होंने कहा आप घरों से औरतें घरों से न निकले, मर्द गाड़ियाँ, ये इस किस्म की जो चीजें जो सोशल इफेक्ट करती है लोगों को, अगर ये होंगे तो बाहर लोग उनको नहीं मानेंगे। तो फिर ये डर है कि पाकिस्तान के अंदर की ताल्लुक अफगान रिफ्यूजीज का और इन्फ्लक्स ना बढ़ जाए। और वो पाकिस्तान है चूंकि अभी और सोवियत यूनियन भी सर जब गया था उस वक्त के बाद जो कुछ हुआ था, डॉक्टर नजीब के साथ जो कुछ हुआ, उस तरह की सूरत हाल भी कहीं ऐसे ही दोबारा से पैदा ना हो जाए। ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बात कोरोना वायरस की भी कर लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत फिर बढ़ने लगी है। 24 घंटों में मजीद 27 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,582 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,980 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 4.09% रही। जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट, शादी और सिनेमा हॉल्स में दाखिला वैक्सीनेशन से मशरूत करार दे दिया। सर्जरीज, OPDs, नौकरियों के टेस्ट या इंटरव्यूज के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और अगर मुल्की सियासत की बात की जाए तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो दौरे अमेरिका पर रवाना हो गए। बिलावल कराची से बरास्ता दुबई अमेरिका रवाना हुए। अमारात हुकूमत की खुसूसी इजाजत से परवाज में पाकिस्तान से मुसाफिर ले जाने की इजाजत दी गई। बिलावल भुट्टो 8 रोजा दौरा अमेरिका में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सेलेक्टेड को कोई नहीं मानता, ना घर में इज्जत है और ना बाहर। इमरान खान का इंतखाबी निशान कश्मीर फरोशी, चीनी चोरी और महंगा आटा होना चाहिए। मरियम नवाज का शारदा आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कश्मीरियों का लीडर इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान नहीं हो सकता। कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास उम्मीदवार ही नहीं है। दोनों जमातों में बादशाहत का कल्चर है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को कश्मीर की तारीख का कुछ पता नहीं, ना ही पाकिस्तान की कुर्बानियों का। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुजफ्फराबाद में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। वजीर ममलकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने भी अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। बोले कश्मीर बचाओ के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है।
इस वक्त आप देख रहे हैं कैंपेन हो रही है, मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कैंपेन करते रहे। जब कैंपेन करते करते थक गए तो पता चला कि उनकी पार्टियों पे तो उम्मीदवार ही नहीं खड़े थे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की आप तकरीरें सुने जो कश्मीर में कर रहे हैं, दोनों को कश्मीर की तारीख का नहीं पता। बिलावल को और मरियम को क्या पता कि पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीरों के लिए क्या कुर्बानियां दी है। ये पैदा हुए तो इनको पता चला कि पाकिस्तान के लोगों की लहू और पसीने की जो कमाई है वो इनके वालिद साहिबान लूट कर पाकिस्तान से बाहर ले गए और उनकी इनके नाम के ऊपर जायदादें बनाई। आजकल कश्मीर बचाओ के नाम के ऊपर से अबू बचाओ मुहिम शुरू हुई हुई। बिलावल जो है वो जरदारी की करप्शन के वारिस है। नवाज शरीफ जो की करप्शन की वारिस मरियम सफदर बनी हुई है। ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो जाली अकाउंट्स का, टीटीओ का, इस मुल्क के अंदर जो है वो करप्शन का निजाम, मनी लॉन्ड्रिंग का निजाम राइज रहे। ये सारी इनकी तगोदो इस काम के लिए है जिन्होंने कश्मीर जो है वो कभी ख्वाब में भी जाने का जो है वो तसव्वुर न किया होगा। और ऐसे बहरूपी हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ का रूप धार लेते हैं। आज कहते हैं जी हम बड़े कश्मीरी हैं, आप बड़े कश्मीरी। बिलावल एक बार नहीं 3 दफा अमरीका जाए, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत, कहा पीडीएम खत्म हो चुकी है, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। शेख रशीद ने कहा कि अफगानिस्तान में वही फैसला काबिल कबूल होगा जो अफगान अवाम करेंगे। वजीर दाखिला का कहना था कि हिंदुस्तान से इस वक्त कोई बात नहीं होगी जब तक 5 अगस्त का कानून वापस नहीं लिया जाता। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक सिक्के के 2 रुख हैं। अफवाहों पर यकीन ना करें, राय रखना सबका हक है, फैसला एक ही होगा। पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जाना चाहिए। 8 जमातों का इत्तेहाद हुआ तो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी हम पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाना चाहती है, हमारा हदफ बिलावल भुट्टो नहीं इमरान खान है। नवाज शरीफ अगर एक कॉइन है तो उसका एक रुख मरियम नवाज है, दूसरा रुख शहबाज शरीफ है। एक ही सिक्के के ये 2 रुख हैं। पीडीएम को हमें सीरियसली एक इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ गामजन करना चाहिए, क्योंकि ये 8 जमातें जो हैं बहुत इनमें हम आहंगी है कि ये अगले इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगा। हमारा हदफ बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है, वो हम पे तनकीद करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा हदफ इमरान न्याजी साहब हैं। जैसे नैब ने ब्रॉड शीट स्कैंडल के अंदर अपने आप को एक मजाक बनाया है, जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबा है, इसमें नारोवाल का इंतखाब मैंने नहीं किया था, हमारी हुकूमत के आने से पहले का हो चुका था। ये एक अधूरा प्रोजेक्ट था जिसको हमने मुकम्मल किया, और मेरे वाले रेफरेंस में भी नैब का मजाक बनेगा। दुश्मन जो पाकिस्तान के हैं वो हमें अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा वजीर आज़म ये बयान देगा कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ख़त्म कर सकते हैं, उनको किसने मैंडेट दिया ये? और फिर हमारे ये खदशात दुरुस्त साबित होंगे कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज ने इनकी फंडिंग की है। फंडिंग अगर आप निकालें तो इजराइल से भी फंडिंग आई हुई है और इंडिया से भी फंडिंग आई हुई है।